He's been known as Shah Rukh Khan's voice for the longest we know. And now he's back, lending his voice to the very besharam Ranbir Kapoor for the song Dil Ka Jo Haal Hai. So Abhijit, please tell us about this song. Don't say that I'm someone's voice and I'm singing for someone. I think everybody is acting and it's my voice. I don't want to be a ghost voice. I don't want to be called a playback singer. Myself, Abhijit, I am a singer. Bad or good, but I am a singer. People are using my voice, people are taking my voice to obviously to sound better what they're looking forward from my delivery. So it's basically you have to believe that I never put that in my mind that for whom I'm singing. I can sing for Rishi Kapoor the same voice, and I sing for Ranbir Kapoor same voice, same song. Just put playback for Rishi Kapoor the same song at this age, it will suit him. Same song with Ranbir Kapoor, you will see that voice, my voice is such, I have full praise for my voice. But it's not mine, it's been given by God. It's something is there which I cannot say this mine. It is given by God. It's produced by my mom, and that's called Abhijit's voice. So now let's talk about Besharam. You have stayed away from playback singing for almost 5 to 6 years. This doesn't matter. A singer of my stature, it doesn't matter. I'm staying away from film music, but I'm not staying away from music. Music can't survive. No radio station can survive without my songs. That's true. That is a challenge, because every new songs comes and go. They come for a week, for 1 month, for 2 months, but there are songs which runs every day. Those are my songs. So I'm not away from music. Music is not away from me. We both are made for each other. I am doing full-time work only in music. Only in music. Whether I do concerts, whether I do my album, or whether I do TV shows, or whatever I do, that is completely 100% music only. 24 hours I am into music. In Bollywood I am not singing. That's not my lookout. It's loss that my voice is not there. But my songs are evergreen. You can find my songs every day, each and every radio stations, not at least once, at least 10 times. So I'm thankful to the music actors who has given me these kind of evergreen songs, immortal songs. So I'm very proud of my singing, not myself. I'm not good, but my singing is too good. So Besharam is a finally outcome of other Besharam musics. Okay. Music has become so Besharam. So Besharam, there is like from the lyrics you can imagine the activities, not the picturization. Something cheap is happening, something vulgar is happening, whether they show it on screen or not. But I don't want to name the lyrics. So इतनी बेशर्मी हो गई थी म्यूजिक में. So I think Lalit Pandit, I can say he's very, very parallel to my godfathers. He's parallelly my godbrother. Lalit Pandit and Abhinav Kashyap must have figured it out that we must have a very, very melody musical number at last. When कुछ है नहीं मार्केट में इस तरह का, तो let's try a fresh voice. तो fresh voice ललित को लगा कि I am the fresh voice. So finally one fresh voice came and अब शुरू हुआ. अब मेरा करियर अभी शुरू हुआ. Okay. Just now. Okay. And there are speculations that this song is similar to a song from Amir Khan's Sarfarosh. So not what Amir Khan's Sarfarosh. It's Lalit Pandit's song. It's Jatin Lalit's song. Okay. It's Jatin Lalit's song. People have to say something, so let them, because that is their profession. If they don't say something, how will they survive? That is their profession. Okay. So you don't agree with that? It's not similar. It's okay. It's their creation.
then all the open ear songs sound same. Tak tik tak tik tak. हुजूर तुमको हुजूरे वाला. तो फिर सब गाने सबके सेम है. So this is the creative work. That's their work. They love that song. तो बोला होगा, maybe director must have told यार ये गाना मेरे को चाहिए फिर से. So that's very difficult. Toughest job. कोई प्रोड्यूसर बोलता है यार ये आपका ही गाना, फिर से ऐसा ही गाना दो और यही इसी तरह का गाना और थोड़ा डिफरेंट भी चाहिए. इट्स वेरी टफ जॉब. और आज के म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए बहुत टफ जॉब है कि कोई बोले यार आई वांट मेलोडी, आई वांट दैट काइंड ऑफ acoustic feeling, live orchestra, melodious composition. So I think Lalit has done a wonderful job. इस तरह का गाना create किया. It's not so easy. So full credit goes to him. So why did you choose this song? Like, I am no one to choose the song. So you were approaching. They have chosen. Okay, they chose you. Yes. Okay. I never go to any music directors. Never. उनकी पार्टी में चला जाता हूँ. उनके किसी प्रोग्राम में होगा तो I will go. ऐसा होगा. लेकिन I never go. वो मेरे ख्याल से मैं लास्ट अगर किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास काम मांगने गया होगा, that was before बागी 91 के पहले मैं शायद I have never gone to any music directors. ऐसे किसी के पास जाओ और कोई बोले कि काम मांगने आए तो फिर that's their problem. So playback singing is basically losing its charm nowadays. So what would you say about it? There is no charm. अभी no more playback singing. Playback singer होता है जब मैंने शाहरुख के लिए गाया. छम्मक छमलो is not a playback singing. लुंगी is not a playback singing. It's just item. तो पहले लड़कियां आइटम नंबर करती थी, अब हीरो लोग करते हैं. Whenever they need a playback, so they need Abhijit. Playback जब जरूरत पड़ेगा कि हाँ एक अच्छा सा आवाज में सुनते लगे कोई हीरो गा रहा है, तो obviously I'm the one who should be given the first preference. Do you think reality shows and live concerts are the reason why playback singing is kind of losing its grip on the film industry? Or people, they don't connect the song and the hero now. It doesn't connect. The song and hero doesn't connect. Whenever they are hearing the song, it's the track, it's the song. They hear it or they watch it till the film is there or till it's getting the promotion. उसका जब तक promotion चल रहा है तब तक उनको याद रहता है. After 1 week or 2 weeks of the film, कोई गाना लोगों को याद नहीं रहता. फिर वो डीजे के पास चला जाता है, डीजे उसको बजाता है. बट लोगों के जहन में एक मेमोरी बन के गाना आज के दिन पिछले 5-6 साल से ऐसा नहीं हो रहा. आज हमारे आरडी बर्मन के बाद से तो आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा उस क्लास का, उस लेवल का कोई म्यूजिक डायरेक्टर हुआ है. भले मीडिया और सब लोग बना दे ही इज ग्रेट, ये वो किसी को भी बना दे, उनका 1 साल पुराना गाना कोई नहीं सुनता. आरडी बर्मन का 30 इयर्स 40 इयर्स का पुराना गाना सुनता है. मेरा 10 साल 12 साल 13 साल पुराना मेरा यस बॉस का गाना लोग सुनते. चलते चलते इज लेटेस्ट, मैं हूं ना इज माई लेटेस्ट का सब सुनते हैं. लेकिन बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स का जिनका नाम इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है, उसका 1 साल का पुराना गाना कोई नहीं सुनता है. It's barely there for 2-3 months and it's gone. 1 साल पुराना गाना उनको नहीं सुनता है बड़े इंटरनेशनल अवार्ड लेने के बाद. नोबडी. सो सब उनका मार्केटिंग का तरीका. मुझे मार्केटिंग का तरीका आता नहीं है. मैं तो अपने भोली भाली सीधा इंसान हूँ. दिल से जैसा गाना निकलता मैं गा देता हूँ. And from the recent film songs, do you think any of the songs, if they were given to you, you could have delivered it better? I think those are good songs. I think every song, except वो जो कबाली लोग चिल्लाते हैं, जो चिल्लम चिल्ली करते हैं, मुझे पसंद ही नहीं होगा. मुझे उसमें क्लास नजर नहीं आता. मुझे उसमें कबाली पना एंड स्ट्रीट पना बहुत लगता है. सड़क
भाई म्यूजिक हर तरह का होता है, म्यूजिक में भी चीप म्यूजिक होता है, वल्गर म्यूजिक होता है, और स्ट्रीट काइंड ऑफ म्यूजिक होता है। जैसे बहुत अच्छी चीज भजन होता है, सूफी होता है, शब्द होते हैं, कीर्तन होता है, गजल होती है, सिंगिंग होती है, सॉफ्ट सिंगिंग होती है, प्लेबैक सिंगिंग होती है। तो वैसा एक गंदा साउंड करता जो वैसा भी होता है, जैसे भिखारी लोग गाते हैं। तो ये विल आपको मालूम पड़ेगा कोई भिखारी गा रहा है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई बहुत सोबर गाना भिखारी जब गाता मालूम पड़ता है। तो दैट इज इन फैशन नाउ, भिखारी टाइप वॉइस एंड हाई पिच और ऊपर चिल्ला चिल्ला के गाना, उसको सूफी का नाम दे दिया। उनको बेवकूफों के नहीं मालूम कि सूफी होता क्या। सूफी इज अ एक लेक्चर, एक इंटेलेक्चुअल, एक फिलोसफी है, इट्स नॉट सॉन्ग। सो उन गानों को तो सवाल ही नहीं उठता मैं गाऊं या डबल मीनिंग का। लेकिन जो भी अच्छे गाने, आई थिंक ऐसा लगता है कि जानबूझ के मुझे नहीं गवाया दिखाने के लिए। देखो हम किसी भी दूसरे सिंगर को गवा सकते हैं, हिट हो सकता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि इतने अच्छे अच्छे गाने हुए हैं, बट दोज आर नॉट इमॉर्टल सॉन्ग्स। अगर मैंने गाया होता तो गाने इमॉर्टल होते हैं। दैट इज ट्रू। That is true, yes. So from your songs, which are your personal favorites? Could you name at least four? So many are. If Since you last 4-5 years मैंने गाना नहीं गाया, लेकिन I have so many songs कि बोलना कि ये वाला गाना में, चलो स्टार्ट करते हैं। खिलाड़ी, बागी, अंजाम, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, सड़क, जमाने के देखे ना नजारा, नाउ यस बॉस, 4 songs, धड़कन, खूबसूरत, टाइटल सॉन्ग, आंखें भी होती हैं दिल की जुबां, हासिल। देन could you hum one or two songs for आई us? विल। चलते चलते के 3 गाने, मैं हूं ना 2 songs, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अशोका, जोश, जुड़वा, Yeah. और एवरग्रीन सॉन्ग, टन टना टन 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 टारा। देन गैंगस्टर, हाँ. ओम शांति ओम, सो मैंने अभी जो मुझे समझ में आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ। लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। ला 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 ला। Thank you. Pleasure. And the new song, can you hum a line from that? दिल का जो हाल, दिल का जो हाल है कि तुम्हें कैसे बयां करे, दिल का जो हाल है कि तुझे कैसे बयां करे, कह दो तुम्हें या दिल में रखे, बोलो तो क्या करे। Thank you. Pleasure. Your voice sounds very good even without the music in the backdrop. So Very young, very fresh. yes, it does, even after so many years. Yes. So basically, when you started your career, do you think it's very easy to get into singing now as it was back then? It's not easy. It is tough for the good singers, but very easy for the bad singers. Okay. Because for the good singers, there is no scope now because they are not making that kind of song. And you have the softwares. So वो अपने चाचा में मेरे भाई सुंदर न्यू कमर दिखी, न्यू कमर, तो गाना नहीं आता, सीखे नहीं है, म्यूजिक से कुछ लेना देना नहीं है, रेस्टोरेंट में हाथ पैर हिला के गाते हैं, उनको ये सब करके गाते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू उनको गवाया जाता है। सी द बिगेस्ट एग्जाम्पल जो म्यूजिक डायरेक्टर्स लोग गा रहे हैं, पहले म्यूजिक डायरेक्टर्स को हमारे सामने गाने में शर्म आता था कि तुम गा नहीं पाएंगे, लेकिन आप इसको
अच्छी तरह से गाइए, तो हमको बताते हैं। अब वो लोग खुले आम वो गा रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पूरे अवेलेबल है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बेसुरा हो रहा हूँ क्या हो रहा हूँ, वो उसको खुद ही ठीक कर लेते हैं। सो जो अच्छे सिंगर्स हैं उनके लिए बहुत टफ है, लेकिन जो सिंगर्स नहीं है, जो बेसुरे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बोले म्यूजिक एक्टर्स उनको गवाते रहते रेगुलर। So how difficult was it for you to get into singing? उस मेरे टाइम में तो सिर्फ बेस्ट सिंगर को चांस मिलता था, ओनली द बेस्ट, वो भी इन मिलियंस। इतने मिलियन के बीच में एक सिंगर को कभी चांस मिलता था। मुझे पंचमदा ने सुना, 2 साल टाइम लिया, मुझे ब्रेक दिया। किसी को नहीं दिया उन्होंने ब्रेक। पंचमदा ने लाइफ में नए सिंगर्स को गवाया, लेकिन ब्रेक किसी को नहीं दिया। आई एम द ओनली वन। सो होता है। For the obvious reason he gave you a break. तो मेरे लायक जब गाने बनने लगेंगे, और उस लैविश में, हम लोग बहुत लैविश में काम किया हम लोगों ने। स्टूडियो, पूरा यूनिट, म्यूजिक एक्टर्स, लिरिसिस्ट सब एक साथ बैठते हैं गाने। आई एम वेरी मच इन। मैं आया हूं तो ऐसा नहीं कि मैं डेस्परेटली आया हूं या कोई बदलाव है, कुछ बदलाव नहीं है। दिस इज वेरी नॉर्मल, बड़े नॉर्मल तरीके से मैं आया हूं, एंड जस्ट वॉच मी, आगे देखते रहिए। मुझे उम्मीद है कि सारे म्यूजिक एक्टर्स जो लोग आजकल काम कर रहे हैं और जो लोग खुद सबसे ज्यादा गा रहे हैं, उनको थोड़ा रेस्ट मैं दूंगा कि अब तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट करो एंड तुम्हारा काम मेरे को करने दो। जैसे मैं म्यूजिक डायरेक्शन का काम मैं नहीं करता हूँ, मैं सिंगिंग करता हूँ, तो उनको बोलूंगा आप म्यूजिक दो, मुझसे गवाओ, मैं आपका गाना मतलब 100% इमॉर्टल कर दूंगा। दैट्स माय जॉब। Do you have plans to launch any of your own album again? Yes, my album is almost ready. लेकिन ये बीच में बेशरम एक आ गया मेरा गाना, सो उसको थोड़ा आगे जाने देता हूँ, जितना मुझे सहारा मिल जाएगा तो उसको मैं अपने एल्बम के लिए यूज करूंगा। माय एल्बम इज रेडी, मैं कभी भी रिलीज कर सकता हूँ। What is the theme of your album? टिपिकल मेरे जो मेलोडी, रोमांटिक, हस्की, सॉफ्ट गाने मेरे जो होते हैं, सो वही है मेरा एल्बम। We'll certainly look forward to that now after Besharam. Yes. Okay. From the newer lot, whom do you think is a good singer from the new? One singer. मैं सोचता हूँ ये सिंगर है, मालूम पड़ता नहीं है, he is not the singer, कोई किसी और ने गाया, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं जिसको ही सोचता हूँ कि ये गा रहा है, तो मालूम पड़ता नहीं, ये तो उसकी कॉपी कर रहा है, किसी बेसुरे की कॉपी कर रहा है। किसी का गला हिलता तो दूसरा सिंगर गला हिला के गा रहा है। तो ये लोग आपस में एक दूसरे को आइडियल मान चुके हैं कि यार हम बड़े बड़े सिंगर्स को तो अपना आइडियल मान नहीं सकते क्योंकि हमसे होगा नहीं, तो चलना हम लोग आपस में एक दूसरे का आइडियल बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे सिंगर सेम गा रहे हैं, अच्छा भी गा रहे तो दे आर साउंडिंग सेम। या तो आप ऐसा करो कि कहीं और से गाओ तो आपकी आवाज पहचानी जाएगी। बहुत से लोग गाते हैं, 3-4 लोग नाक से गाते हैं, तो पहचाने जाते कि ये वो गा रहे हैं। सो बाकी जो नॉर्मल है, सबका वॉइस एक सॉफ्टवेयर के थ्रू फिल्टर होके आ रहा है, सब लोगों का। सो सॉरी टू से दैट, मुझे गुणी सिंगर्स बहुत से, एक से एक, मतलब जो लोग बहुत अच्छा गाते हैं, जिनको संगीत का नॉलेज है, मीठा गाते हैं, जैसे जावेद अली हो गया, इज अ गुड सिंगर। लेकिन अगर म्यूजिक डायरेक्टर उसकी आवाज को चेंज करके निकालेगा तो बहुत तकलीफ होती है कि ओरिजिनलिटी आप खत्म कर दे रहे किसी की। सो वैसे बोला जाए तो क्या वो गाना आता है, वाई डू तो वर्डिंग भूल गया। Why this Kolaveri? कहाँ है वो? It's gone. I think the fever died down long time back. मुझे हंसी आती है। क्या फालतू कोलावरी, क्या हो गया? मतलब सेम हो गया, मतलब कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, ये भी एक कर लो, सक्सेस हो गया, तो उसके लिए कितना डेंजरस हो गया। फॉर नो रीजन, व्हाट ही डजंट डिजर्व,
जहाँ पे एक सिंगर डिजर्व नहीं करता, उसका गाना इतना बड़ा हिट हो जाता है, नेक्स्ट टाइम ही इज जीरो. जीरो. Because singing was never his profession maybe, so. नहीं, प्रोफेशन की बात नहीं, बैड लोगों को जब वो मिल जाता है सिंगिंग करने को और मिलता, तो वो उनकी जिंदगी का सबसे मतलब डेंजरस टाइम होता है. उसके बाद दे आर नोवेयर. We even have actors getting into singing these days. So, what is your take on that? We have quite a few. They all cheat. They don't sing. उनके पीछे पीछे पैरेलली एक दूसरे सिंगर का लेयर चलता है, फिर वही सॉफ्टवेयर से. अब सॉफ्टवेयर आ गया, हर कोई गाना गाएगा. आप कल आ जाओ और एक मेरे स्टूडियो में मैं आपको गवा देता हूँ, लेकिन मेरे उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑटो ट्यूनर नहीं है. ओके. तो आज के दिन गाना एक सिंगर नहीं गाता है, एक गाना सिंगर के साथ पैरेलली एक ऑटो ट्यूनर चल रहा है, वो आपको ट्रैक पे द्वारा. सिंगर्स की हालत इस टाइम बहुत शोचनीय है. अच्छे सिंगर्स, उनकी मजबूरी है. जैसे एक जॉब के लिए 100 लोग अप्लाई करते हैं, 500 लोग अप्लाई करते हैं, 10 पोस्ट खाली होता है, उसके लिए 10,000 लोग अप्लाई करते हैं. सिंगर्स की हालत ये होगी, म्यूजिक डायरेक्टर एक गाना 20-20 सिंगर से गवाता है, फिर जो सही लगता है वो रखता है. आप लोगों को लगता होगा ये सिंगर अवार्ड ले रहा है और वाह वाह ये सिंगर के लाइन से गाने आ रहे हैं. आपको ये नहीं मालूम कि उसने और भी गाने गाए जो रिजेक्ट हो गए, क्योंकि 10-10 सिंगर से एक गाना गवाया जाता है. ऐसा हो गया. So हम राजा महाराजा की तरह अपना गाते हैं. हम गाते हैं तो सबको मालूम पड़ता, पूरी दुनिया को मालूम पड़ता है. यहाँ पे चपरासी की तरह बेंच में बैठे हो, अंदर म्यूजिक डायरेक्टर का असिस्टेंट, वो आपसे रिकॉर्डिंग करवा रहा है, एक नेक्स्ट चलो चलो चलो. क्या इससे गंदा जघन्य पाप क्या हो सकता है कि एक सिंगर्स को आप लोग इस तरह से यूज कर रहे हो. कितनी तौहीन है संगीत की. वेरी सैड, वेरी सैड. बहुत दुख होता है. Okay, I understand when your art is getting so you say have sung songs with a lot of female singers. Like recently, I think this song is with Shreya Ghoshal, right? So who is your favorite from the female? नहीं, आंसर नहीं कर सकता. सब मुझे अभी सबका फोन आएगा. आपने मेरी तारीफ नहीं की, आपने मेरा नाम नहीं लिया. Okay, too many. क्या गाते हो तुम लोग यार. Fantastic. All of them. So it's for all. All of them. So you usually check who you're singing with. If you have a female singer with you, does that matter to you? Never. So if you are given a song with one of the actor turned singer, would you do that? Female? Yeah. I will do everything with her. Whatever. Okay. Song क्या? Music भी बजा दूंगा मैं. Okay. I will make music with her. So what? So in that is okay with you, like even if they are using. क्योंकि वो मेरे साथ इसलिए नहीं करेंगे कि डोमिनेट मैं ही करूंगा ना. मेरी वॉइस के सामने उनकी वॉइस कहीं टिकेगी नहीं, तो दे विल नीड अ बैड सिंगर, या कोई म्यूजिक डायरेक्टर गा देगा उसके साथ. ऐसे ही हो सकता है. मेरे साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता. I have to be very powerful. So on a concluding I am note, full of myself. That's a good thing. Yes, I respect too much to myself. Okay. Which usually there are times when it comes out that Yes. you are arrogant, but I'm not arrogant. I'm very, very friendly. मैं अपना प्रेस क्या करूं. I'm a very, very nice human being. okay. जो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे अच्छे आदमी लोग बहुत कम होते हैं. I'm one of them. Okay. I would agree with that after meeting you. So, on a concluding note, could you sing maybe a line from your new album? Just one? No, I'm not supposed to sing my new album song because अभी तक market में आया नहीं. Okay. So when it release, I will do an interview again with you. Okay, sure. I will. Okay, thank you. Nice. So this was Abhijit Bhattacharya for you.